أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ترجمہ کنز ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے. ترجمہ کنز العرفان. ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. سیذکر من یخشی. ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی نصیحت وہ مانے گا جو اللہ تعالی اور اسے اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے اور آپ کی نصیحت سے وہ دور ہوگا اور نصیحت کو قبول نہیں کرے گا جو آپ کا دشمن بن کر بڑا بدبخت کافر ہے، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ. اور وہ بدبخت کافر جہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے اور نہ ایسا جینا جیے گا جس سے کچھ بھی آرام پا سکے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص نصیحت کو تسلیم کرتا ہے وہ خشیت الہی کے زیور سے آراستہ ہے. قد افلح من تزکا. بے شک مراد تو پہنچا جو ستھرا ہوا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا. اس آیت میں لفظ تزکا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا ہے. اس صورت میں اس آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل کرنا ثابت ہوتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا مراد ہے. اس صورت میں یہ آیت زکوٰۃ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس آیت کے زکوٰۃ سے متعلق ہونے پر اشکال ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے جبکہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ کا مطلب دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کرنا ہے. دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی یا عطائی. وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے، کسبی اپنے اعمال سے، جبکہ عطائی کسی کی نظر سے. جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے. وذکر اسم ربہ فصلی. ترجمہ کنز ایمان. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ترجمہ کنز العرفان. اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی اور اس نے نماز شروع کرنے کی تکبیر کہہ کر 5 نمازیں پڑھی. اس آیت سے نماز شروع کرنے کی تکبیر ثابت ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے نماز شروع کرنا جائز ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی
सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। तर्जमा कंजुल ईमान, बल्कि तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली, बेशक ये अगले सहीफों में है, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। तर्जमा कंजुल इरफान, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है, बेशक ये बात ज़रूर अगले सहीफों में है, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। बल तु'सिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा ये है कि दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी रहने वाली है, और जो चीज़ बाकी रहने वाली है वो फ़ानी से बेहतर है। और ऐ लोगों, तुम्हारा हाल ये है कि तुम दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी को आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी पर तरजीह देते हो, इसीलिए तुम वो अमल नहीं करते जो वहाँ काम आएंगे। बेशक पाकी हासिल करने वालों के कामयाब होने और आखिरत के बेहतर होने की बात कुरान पाक से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नासिल होने वाले सहीफ़ों में भी मौजूद है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बात तमाम सहीफ़ों में मौजूद है और उन्हीं में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया चूँकि हमारे सामने मौजूद है और उसका खाना पीना, औरतें, दुनिया की लज्जत है और उसकी रंगीनियाँ हमें जल्द दे दी गई, जबकि आखिरत हमारी नज़रों से गायब है, इसलिए जो चीज़ हमें जल्द मिल रही है हम उसे पसंद करने लग गए और जो बाद में मिलेगी उसे हमने छोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुनियावी ज़िंदगी की फ़ानी लज्जतों, रंगीनियों और अनाइयों में खोकर अपनी आखिरत को न भूल जाए, बल्कि वो अपनी सांसों को गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इताअत में गुजारे और आखिरत में जन्नत की दायमी नेमतें हासिल करने की कोशिश करे। जबकि फ़ी ज़माना मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अपनी दुनिया बेहतर बनाने में ऐसी मसरूफ़ है कि उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं। दुनिया और आखिरत के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहब वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला तअक़िलून। सूरह इनआम आयत नंबर 32। तर्जमा, और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल कूद है और बेशक आखिरत वाला घर डरने वालों के लिए बेहतर है, तो क्या तुम समझते नहीं। और इरशाद फरमाया, अफलम यसीरू फिल अर्द फयंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ अफला तअक़िलून। सूरह यूसुफ आयत नंबर 109। तर्जमा, तो क्या ये लोग ज़मीन पर नहीं चलते ताकि देख लेते कि उनसे पहलों का क्या अंजाम हुआ, और बेशक आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है, तो क्या तुम समझते नहीं। और इरशाद फरमाया, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमा मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 18 ता 19। तर्जमा, जो जल्दी वाली दुनिया चाहता है तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है जिसमें वो मज़मूम मरदूद होकर दाखिल होगा, और जो आखिरत चाहता है उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसी करनी चाहिए और वो ईमान वाला भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। लिहाजा ऐ बंदे, वबतगी फीमा आताका अल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका वला तबगिल फसादा फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन।
सूरह कसस आयत नंबर 77। तर्जमा, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला हमें दुनिया की फानी नेमतों और बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली लज्जतों में खोने से महफूज फरमाए और हमें अपनी आखिरत की फिक्र करने और उसे बेहतर बनाने के लिए खूब कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है कि वहाँ की नेमतें हर एतबार से दुनिया की नेमतों से अफजल हैं और उनके हुसूल में कोई तकलीफ व मशक्क़त ना होगी और इस्तेमाल में कोई बीमारी वगैरह ना होगी, और बाकी रहने वाली इस तरह है कि कभी फना ना होंगी। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़